Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Unacademy. My name is Asha Tiwari and the topic for today is schools of jurisprudence. So guys, this is the topic for jurisprudence and I will be discussing you the important jurists and the important schools of jurisprudence. So before starting, let me give you a brief introduction about Unacademy. Guys, Unacademy helps you to prepare your PCSJ examination and you can use my code ASHALAW10 to get extra 10% off. But wait, there's something more. What? That you people are also getting the scholarship test for 2023 on January 15th 12 p.m. and you can again have a chance to win scholarships worth up to 100%. So this is an exciting announcement on my behalf to you people. If not already enrolled, then get yourselves enrolled as soon as possible, and rank 1 and rank 2 to 5 holders will get a chance to meet Anil Khanna sir and Tansukh Paliwal sir respectively. Rank 6 to 1000 will also get Unacademy's exclusive scholarships. So what are you waiting for? Get yourselves enrolled. You know the link, you know the code. Get yourselves enrolled. We have for you 23% off on all Unacademy Judiciary subscriptions. New year, new resolution and new goal, and happy new year to everybody. So hurry, this is a limited period offer and you can see the plus and iconic, what you pay and what you save. So use my code ASHA Live or ASHA Law 10 and get yourself subscribed as soon as possible. Now we have some batches ongoing and some are upcoming batches. So this Karnataka State Judiciary Comprehensive batch is an upcoming batch starting from 5th of January. Duration is for 6 months and the course is going to be in Kannada as well as in English. Prarambh 18-month Judiciary Foundation batch for all state judiciary exams has started from 27th of December. Duration is for 18 months, so if not already subscribed, then get yourself subscribed. Rapid revision for UP and Chhattisgarh Judiciary has started from 20th of December. Duration is for 3 months, so if not subscribed, then get yourselves subscribed. Sankalp UP PCSJ prelims batch has started from 17th of December. Duration is for 3 months. If not subscribed, then get yourself subscribed as soon as possible because the prelims are going to happen for this very UP PCSJ on 12th of February. So जितनी जल्दी enroll करेंगे उतनी जल्दी आपको course मिलते जाएंगे. रिवैम्ड टेस्ट सीरीज में आपको फुल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पेपर्स मिलते हैं. प्लस वालों को मेंस टेस्ट इवैल्यूएशन मिल जाता है और जजमेंट राइटिंग एंड लोकल लॉ सब्जेक्टिव टेस्ट मिलता है आइकॉनिक वालों को. आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देखिए एक कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं बैच में अपने आप को एनरोल करने के लिए. रिवैम्ड टेस्ट सीरीज फॉर जुडिशरी लर्नर्स में हमारे पास स्पेशल ऑफरिंग है दिसंबर के लिए जो कि आपकी स्क्रीन पे है. तो बिना टाइम वेस्ट किए यू कैन गेट योरसेल्फ स्टार्टेड. यू कैन यूज माय कोड आशा लाइव एंड गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड. You have the Unacademy subscription on your screens for Plus and Iconic. The price after the referral code you can see, and I do not have to speak anything for that. आपकी स्क्रीन पे ही है कि पहले क्या देना पड़ रहा था, अब क्या देना पड़ रहा है. So there is a huge difference. Now we have this Articulate and initiative by Unacademy. This is a monthly current affairs which is coming soon to you people. So stay tuned with us. We are available on YouTube by Judiciary Preparation with Unacademy, Unacademy Judiciary and Judiciary World. And we are also available on Telegram by the name Unacademy Judiciary PCSJ, Judiciary World and Linking Laws. Now guys, I'm starting the topic for today, jurisprudence, and in jurisprudence we are going to study the topic schools of jurisprudence. तो schools of jurisprudence तो हम पढ़ेंगे, लेकिन schools of jurisprudence पढ़ने से पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि jurisprudence क्या होता है. तो jurisprudence के लिए आपको ये पता होना चाहिए गाइज कि जूरिस्प्रूडेंस की कोई ऐसी यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है ना. और बहुत सारे आइडियोलॉजीज के और बहुत सारे नोशन के लोगों ने दुनिया भर में इसको अलग अलग अपनी आइडियोलॉजीज और डेफिनेशंस के थ्रू मार्क किया है. बेसिकली आपको जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक लैटिन शब्द जूरिस्प्रूडेंशिया से लिया गया है. जूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन शब्द जूरिस्प्रूडेंशिया से लिया गया है और जूरिस्प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ या फिर स्किल इन लॉ. ठीक है, नॉलेज ऑफ लॉ या फिर स्किल इन लॉ. बेसिकली ये कॉमन लॉ सिस्टम से लॉज लिए गए हैं सारे. एंड अगर आप फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो बेंथम को जो है फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस
कहा जाता है। तो ये एक स्पेशल चीज़ है जो आपको बताई। तो इनमें से 2 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पहला कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, तो जूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है जूरिस्प्रूडेंशिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल इन लॉ। और फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हम कहते हैं बेंथम को, ठीक है। और बेंथम के ही काम को ऑस्टिन आगे ले गए थे। तो फिर आगे तो आपको जो लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू पीपल। अब बेंथम ने जो है, जैसे कि अभी मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ, उसके बाद हम स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बेंथम को कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, बेंथम सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये एनालाइज करने की कोशिश की कि आखिर लॉ क्या है। बेंथम वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एनालाइज कि व्हाट इज लॉ, है ना। और इन्होंने अपनी स्टडी को 2 भागों में डिवाइड किया। बेंथम ने अपनी स्टडी को टू एनालाइज व्हाट इज लॉ, इन्होंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया। पहली जो इनकी अप्रोच थी वो थी कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज, एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज। और दूसरी इनकी अप्रोच थी एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट ऑट टू बी। पहला तो लॉ को उस तरीके से एग्जामिन करिए जैसा कि वो है, दूसरा लॉ को उस प्रकार से एग्जामिन करना जैसा कि उसको होना चाहिए। ये 2 अप्रोचेस जो है ये बेंथम ने फॉलो की। और इसमें जो पहली अप्रोच है कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज, इसमें ही इसी को आगे चल के जो है कमांड ऑफ द सॉवरेन नाम दिया गया था। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजिटोरियल अप्रोच, ठीक। और जो दूसरी अप्रोच है एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट ऑट टू बी, इसको आगे चल के मोरालिटी इन लॉ में आप पढ़ते हैं। और इस अप्रोच का नाम होता है सेंसोरियल अप्रोच, सेंसोरियल अप्रोच, ठीक। तो इसमें ऑस्टिन ने आगे चल के कमांड ऑफ द सॉवरेन वाली अप्रोच ले ली थी, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज। एंड ये था आपका मेन जूरिस्प्रूडेंस का एक हल्का सा बैकग्राउंड कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से ली गई, जूरिस्प्रूडेंस के फादर किसको कहते हैं और जूरिस्प्रूडेंस के फादर बेंथम को क्यों कहते हैं, क्योंकि बेंथम ने इसको एनालाइज किया था सबसे पहले और 2 प्रकार से एनालाइज किया था, एक्सपोजिटोरियल अप्रोच और दूसरी है सेंसोरियल अप्रोच, ठीक। ओके, तो अब किसकी क्या डेफिनेशन है ये अभी हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपकी एक अलग क्लास ले लूंगी। फिलहाल आपको जूरिस्प्रूडेंस का हल्का सा ब्रीफ देके अब मैं बढ़ रही हूँ अपनी पीपीटी की ओर जो आपकी स्क्रीन पे है, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे। तो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे जब हम आते हैं दोस्तों, तो जो सबसे पहला स्कूल है वो है फिलोसॉफिकल स्कूल, जिसको हम नेचुरल लॉ स्कूल भी बोलते हैं। दूसरा है आपका एनालिटिकल स्कूल, तीसरा है आपका हिस्टोरिकल स्कूल, चौथा है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल और पांचवा है आपका रियलिस्ट स्कूल। स्कूल्स आपको और मिलेंगे जूरिस्प्रूडेंस के, लेकिन ये 5 वो बेसिक स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी है तो। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहला है फिलोसॉफिकल स्कूल या नेचुरल लॉ स्कूल, दूसरा है एनालिटिकल स्कूल, तीसरा है हिस्टोरिकल स्कूल, चौथा है सोशियोलॉजिकल स्कूल और पांचवा है रियलिस्ट स्कूल। अब सबसे पहले पे हम आते हैं फिलोसॉफिकल स्कूल। फिलोसॉफिकल स्कूल को नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है, तो इसको आप 2 नामों से पढ़ते हैं, एक है फिलोसॉफिकल स्कूल और दूसरा है नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब ये बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजंस एंड इट्स पर्पस इज टू एलिवेट ह्यूमन पर्सनैलिटी। लॉ जो है वो ह्यूमन रीजंस का प्रोडक्ट है और लॉ का पर्पस है कि वो ह्यूमन पर्सनालिटी को और एलिवेट करे। फिलोसॉफिकल स्कूल और नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब इसके मेन जूरिस्ट कौन है, तो यहाँ पे यही आप लोगों के लिए स्पेशल एक चीज मैं लिख के लाई हूँ, क्योंकि यहीं पे होती है दिक्कत, क्योंकि बच्चे ये तो पढ़ लेते हैं कि स्कूल कौन कौन सा है, लेकिन जूरिस्ट ढूंढने में होती है बहुत दिक्कत। तो जूरिस्ट के लिए आप लोग के लिए मैं लेके आई हूँ फिलोसॉफिकल स्कूल या नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के जो मेन जूरिस्ट हैं वो है ग्रोशियस, हेगल और इमैनुअल कांट। ग्रोशियस, हेगल और इमैनुअल कांट। तो पहला स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है फिलोसॉफिकल स्कूल या नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। फिलोसॉफिकल या नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजंस एंड इट्स पर्पस इज टू एलिवेट द ह्यूमन पर्सनैलिटी, एज सिंपल एज दैट। मेन जूरिस्ट आर ग्रोशियस, इमैनुअल कांट एंड हेगल।
Now, moving to another school of law, school of jurisprudence. The second one is known as analytical school, and it is also known as the positivist school of jurisprudence. So, philosophical and natural, एनालिटिकल और पॉजिटिविस्ट, सबके दो दो नाम है. अभी तक हमने दो पढ़ रहे हैं और दोनों के दो दो नाम है. फिलोसॉफिकल को हम नेचुरल स्कूल भी कहते हैं, और ये एनालिटिकल स्कूल है जो दूसरा स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, और इसको हम पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं. अब पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है? पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एनालिटिकल को इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इट कंसिडर्स लॉ एज इट इज एंड नॉट इट ऑट टू बी. हेनरी मेन ने एनालिटिकल वर्ड को कॉइन किया था, ये भी एक आपको याद रखने वाली चीज है. सर हेनरी मेन कॉइन्ड द वर्ड एनालिटिकल. जॉन ऑस्टिन इज नोन एज द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल. ये जो आप एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस या पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, इसके फादर हैं जॉन ऑस्टिन. ठीक. और इस एनालिटिकल स्कूल के दो प्रिंसिपल्स हैं. पहला, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, जो अभी आप लोगों को मैंने बताया, ऑस्टिन. और दूसरा है, फोर्स इज द एसेंस ऑफ लॉ, यानी कि व्हाट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इज नॉट लॉ. एनालिटिकल स्कूल और पॉजिटिविस्ट स्कूल बहुत इजी है. एनालिटिकल और पॉजिटिविस्ट स्कूल ये कहता है वही जो अपनी पहली वाली बेंथम की थ्योरी थी, जो उन्होंने पहला एग्जामिन किया था, कि लॉ एज इट शुड बी, लॉ एज इट इज, सॉरी लॉ एज इट इज, है ना. तो लॉ एज इट इज में ऑस्टिन आ जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया. एनालिटिकल को कॉइन किसने किया? जॉन ऑस्टिन ने. एनालिटिकल स्कूल के फादर बोले जाते हैं जॉन ऑस्टिन. ठीक है. और एनालिटिकल वर्ड को कॉइन किया सर हेनरी मेन ने, और फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल बोले जाते हैं सर जॉन ऑस्टिन. अब यहाँ के मेन जूरिस्ट आपको बेंथम मिलते हैं और ऑस्टिन मिलते हैं. इसके बाद हम तीसरे स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आते हैं. जो हमारा तीसरा स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो मेन जूरिस्ट हैं वो है सैवनी. सैवनी हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर हैं. ठीक है. और इन्होंने वोल्जस थ्योरी दी थी. उसके बाद हेनरी मेन, और उसके बाद एडमंड बर्क. ये तीनों आपके मेन जूरिस्ट हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के. हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता क्या है, आइए इसको देख लेते हैं. हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि लॉ इज एन आउटकम of long historical development of society because it originates from the social customs, religious principles, economic needs. It is an outcome of influence of the past. Law is based on general consciousness of the people. जो हमारा तीसरा स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि लॉ जो है बहुत पहले से, बहुत पुराने काल से डेवलप होता आ रहा है, और वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का एक आउटकम है, क्योंकि लॉ जो है वो ओरिजिनेट करता है सोशल कस्टम से, रिलीजियस प्रिंसिपल से और इकोनॉमिक नीड से. इसीलिए इट इज एन आउटकम ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट, ऐसा हमारा हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है. और हिस्टोरिकल स्कूल ने बोला कि लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, यानी लोगों की जो कॉन्साइंस, उस हिसाब से लॉ. और हिस्टोरिकल स्कूल जैसा कि नाम बता रहा है, वैसे इन्होंने कहा कि हिस्ट्री से जो है लॉ आया है, यानी कि हिस्ट्री की आउटकम है लॉ. जो सोशल कस्टम से, जो रिलीजियस प्रिंसिपल से और जो इकोनॉमिक नीड्स थी, उन्होंने लॉ को जन्म दिया. इनके मेन जूरिस्ट है सैवनी. सैवनी जो है वो हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर माने जाते हैं, और इनकी वोल्जस थ्योरी जो है बहुत फेमस है. सैवनी की वोल्जस थ्योरी जो है दैट इज बेस्ड अपॉन जनरल विल और फ्री विल ऑफ द कॉमन पीपल. तो वोल्जस थ्योरी यानी कि पीपल्स थ्योरी, और इसमें इन्होंने बोला कि कॉमन विल ऑफ द पीपल जो होती है वो लॉ बन जाती है. सर हेनरी मैन और एडमंड बर्क इसके और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं. फिर हमारा चौथा स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ को एक सोशल फिनोमेना मानता है, और ये कहता है कि लॉ और कुछ नहीं बल्कि एक सोशल फंक्शन है, ह्यूमन का एक एक्सप्रेशन है, या ह्यूमन सोसाइटी का एक एक्सप्रेशन है, जो कि एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स से कंसर्न है. यानी कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लाइन में ये कहता है कि लॉ स्टेट से नहीं आया है, बल्कि लॉ सोसाइटी से आया है. लॉ स्टेट से नहीं आया है,
लॉ सोसाइटी से आया है। ये कौन कहता है? सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो मेन ज्यूरिस्ट हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं, मॉन्टेस्क्यू, अगस्त, कॉम्टे, रूसो पाउंड, डुगूथ और हर्बर्ट स्पेंसर। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ट्रीट्स लॉ एज अ सोशल फिनोमेना. इट सेज दैट लॉ इज अ सोशल फंक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कंसर्निंग द एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स. It states that law did not come from the state but from the society. The main jurists are Montesquieu, Auguste Comte, Rousseau Pound, Duguth and Herbert Spencer. पांचवा हमारा स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. अब रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है दोस्तों? रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो इस चीज पे एम्फसाइज करता है कि कोर्ट्स क्या कर सकते हैं. लॉजिकल डिडक्शंस के थ्रू. रियलिस्ट जैसा कि नाम बता रहा है ये रियल है भाई. ये कहता है कि जो चीजें आती जाती हैं उसमें लॉजिक लगता जाता है, लॉजिक लगता जाता है, कोर्ट लॉजिकल एक्सप्रेशंस देता है, लॉजिकल डिडक्शंस करता है. लॉजिकल डिडक्शंस जनरल रूल्स पे बेस्ड होते हैं. जनरल रूल्स जो है वो एक आइडियोलॉजिकल प्रीमाइसेस पे बेस्ड होते हैं और हेंस एक लॉ बन जाता है. तो रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है इट एम्फसाइजेस मोर ऑन व्हाट द कोर्ट्स मे डू rather than abstract logical deductions from general rules and on the inarticulate ideological premises underlying a legal system. The main jurists are Jerome Frank, Gray and Holmes. Frank, Gray and Holmes. Now, before moving forward guys, you can use my code Asha Live and you can also follow me on my YouTube channel. So the name of my YouTube channel is Coaching Classes by Ash. You can see in the last line जिसपे transfer of property ongoing है. Coaching Classes by Ash is the name of my YouTube channel. You can follow me there. You can also follow me on an academy by using my code Asha Live. Now again let us revise all the form of school everybody so that we do not miss out any. हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ा ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहाँ से आया, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनके दो अप्रोचेस कौन कौन से थे. ठीक. सो स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमने पढ़ा 5 प्रकार के स्कूल्स. पहला है फिलोसॉफिकल स्कूल जिसको हम नेचुरल लॉ स्कूल भी कहते हैं, एनालिटिकल स्कूल जिसको हम पॉजिटिव स्कूल भी कहते हैं, फिर है हिस्टोरिकल स्कूल, फिर है सोशियोलॉजिकल स्कूल और फिर है रियलिस्ट स्कूल. फिलोसॉफिकल स्कूल या नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो हमारा कहता है कि लॉ का पर्पज है कि वो एलिवेट करे ह्यूमन पर्सनैलिटी को और लॉ जो है वो प्रोडक्ट है ह्यूमन रीजंस के. इसके मेन ज्यूरिस्ट थे हमारे ग्रोशियस, हीगल और इमैनुअल कांट. उसके बाद हमने एनालिटिकल स्कूल पढ़ा जिसको हम पॉजिटिव स्कूल भी कहते हैं. एनालिटिकल स्कूल जो टर्म एनालिटिकल है इसको सर हेनरी मेन ने कॉइन किया था और फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहा जाता है जॉन ऑस्टिन को. लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन भी इन्हीं का है. मेन ज्यूरिस्ट है बेंथम और ऑस्टिन. अब ये एनालिटिकल स्कूल क्या कहता है? एनालिटिकल स्कूल कहता है कि लॉ एज इट इज. हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम से ही पता चल रहा है ये कहता है कि लॉ जो है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का आउटकम है और ये जो है इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट है. उसके बाद जो है ये कहता है कि लॉ जो है वो जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल पे बेस्ड है. वोल्जर्स थ्योरी जो दी थी सैवरी ने. ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल. हेनरी मेन और एडमंड बर्के इनके मेन ज्यूरिस्ट हैं. सोशियोलॉजिकल स्कूल हमारा चौथा फॉर्म ऑफ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि लॉ एक सोशल फिनोमेना है. लॉ स्टेट से नहीं आता बल्कि सोसाइटी से आता है. इनके मेन ज्यूरिस्ट है मॉन्टेस्क्यू, अगस्ट कॉम्टे, रूसो पाउंड, डुगूथ और हर्बर्ट स्पेंसर. उसके बाद हम रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आ जाते हैं. रियलिस्ट स्कूल कहता है कि कोर्ट्स जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल डिडक्शन निकालता है जनरल रूल से और उसी से जो है आ जाता है लॉ. एंड लॉ वो है जो कोर्ट्स करते हैं ना कि जो लोग बोल रहे हैं कि लॉ है. मेन ज्यूरिस्ट हैं जेरोमी फ्रैंक, ग्रे और होम्स. तो गाइज आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो. अगर आई हो तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और ऐसी और क्लासेस के साथ मैं आती रहूंगी आप लोग के साथ. फिलहाल आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है कोचिंग क्लासेस बाय Ash. Thank you everybody. Keep on laughing, loving, living and also studying. I'm going to see you people tomorrow again. Bye bye. Take care.